सीधे आपको लिए चलते हैं, मायावती इस वक्त संबोधित कर रही है। लोगों को भी लगाया हुआ है जिनकी मैं पिछले महीने समीक्षा कर चुकी हूँ, लेकिन आज ऐसी विधानसभा की सीटों पर लगे जिन पदाधिकारियों को बुलाया गया है, ये सभी पदाधिकारी पिछले कई महीनों से अपने अपने क्षेत्र में इस कार्य में पूरे जी जान से लगे हैं और आज मेरे खुद के द्वारा इनके कार्यों की गहन समीक्षा करने के लिए ही इन्हें प्रदेश कार्यालय लखनऊ में बुलाया गया है। वैसे आप लोगों को ओबीसी वर्गों के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि आज यूपी सहित पूरे देश में अति पिछड़े वर्गों के लोगों को विशेषकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में जो इन्हें आरक्षण संबंधी सुविधाएं मिली हैं, तो ये सब वास्तव में पूरी की पूरी देन। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 12 सांसदों के निलंबन को लेकर राज्यसभा में आज भी घमासान जारी है। विपक्ष ने जोरदार हंगामा इसे लेकर किया। मांग यही कि सभी सांसदों का निलंबन खत्म हो, उनकी बर्खास्तगी को रद्द किया जाए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने निलंबन को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि माफी का कोई सवाल ही नहीं है। खड़गे के सवालों का जवाब देते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि निलंबन खत्म करने की विपक्ष की मांग का कोई मतलब नहीं। राज्यसभा के सभापति ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि उनका फैसला फाइनल है। I wish to raise a very important procedural issue relating to suspension of 12 members of Rajya Sabha for the entire duration of the session. Yesterday, on adoption of motion moved by the Minister of Parliamentary Affairs, the moving of the motion and its adoption is a gross violation of rules of procedure regarding suspension of members provided under Rule 256. At the time the Minister was moving the motion, I sought to raise a point of order under the provisions of Rule 258 of the Rules of Procedure. As per the well-established conventions, every member who seeks to raise a point of order has to be permitted by the chair to raise the point of order. Furthermore, when the leader of opposition is seeking to raise a point of order, they have to be allowed to raise the same. I was, however, not allowed to raise my point of order. Rajya Sabha is a continuing institution, and the chairman of the House of the Rajya Sabha is empowered 256, 259, 266, even other residuary powers also. Chairman can take action and also the House can take action. What happened yesterday is not chairman taking action. It is the House, after a resolution is moved, that has taken action. And also, please, please, hear me. Even about these members, on 10th August, go through the records. If you want, I will ask that to be released again. 10th, we have named members. राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन पर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्ष ने फैसले को अलोकतांत्रिक करार देकर सरकार पर निशाना साधा और राज्यसभा में आज हुए हंगामे के बाद फिलहाल ये विवाद थमता नहीं दिख रहा, क्योंकि सभापति ने ये साफ कर दिया कि निलंबन खत्म करने का फैसला अंतिम है। एक्शन शीतकालीन सत्र में, और वो भी पहले ही दिन। कहा जा रहा है कि 12 सांसदों का निलंबन एक नजीर है, एक मिसाल है कि लोकतंत्र का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसी हंगामे को लेकर तब राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू बेहद भावुक हो गए थे। कहा था कि सदन में जो कुछ हुआ उससे लोकतंत्र का मंदिर अपवित्र हो गया। The Parliament, the apex legislature of our country,
is regarded as the temple of democracy. Distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday, when some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. मॉनसून सत्र के आखिरी दिन यानी 11 अगस्त को जो राज्यसभा में हुआ था, उसे लेकर विपक्ष के अपने तर्क हैं, सरकार की अपनी दलील, लेकिन तब के वीडियो फुटेज और सीसीटीवी तस्वीरों की जांच पड़ताल की बदौलत 12 विपक्षी सांसद पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए। मतलब ये कि निलंबित 12 सांसद पूरे शीत सत्र में कार्यवाही से दूर रहेंगे। निलंबन से बचने का बस एक रास्ता है, सांसद चेयर से माफी मांग ले। विपक्ष कह रहा है कि निलंबन अलोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है, माफी मांगने का सवाल नहीं। ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, एक। दूसरा क्या है, किस ढंग से उन्होंने सस्पेंड किया है, वो रूल्स रेगुलेशंस बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये है लास्ट सत्र का है, तो ये अब विंटर सेशन में इसको मुद्दा बना के सस्पेंड करना, तो अपोजिशन की मुंह बंद करने के लिए उनकी जो पोल खुलेगी वो नहीं खोलना, इसीलिए सारे अपोजिशन पार्टी को उन्होंने सस्पेंड करने का निर्णय लेकर सस्पेंड किया है। अब पूरा मामला भी समझ लीजिए। 11 अगस्त को इंश्योरेंस बिल पर चर्चा चल रही थी, तभी विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, चेयर पर किताब फेंकी गई, कुछ सांसद टेबल पर चढ़ गए। जो सांसद बोलना चाह रहे थे उनके चेहरे के सामने प्ले कार्ड लगा दिया गया ताकि चेहरा ढक जाए। इतिहास में कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी। सरकार कह रही है कि निलंबन का फैसला सही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार जिन लोगों ने किया था, उन लोगों के बारे में एक्शन लेने के लिए हमने एक प्रस्ताव मुंह किया। तब भी हम उनको कहा, आप सभी को ये कहिए वो सदन में माफी मांगे, रिग्रेट व्यक्त करें। अगर वो विषाद व्यक्त करते हैं तो हम मामला यही क्लोज करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। सवाल है कि उस हंगामे बवाल के 3 महीने 18 दिन बाद निलंबन क्यों? तो उन पर लगे आरोप सुन लीजिए। सरकार का कहना है कि डोला सेन ने स्कार्फ को फांसी का फंदा बनाया और सांसद शांता छेत्री के गले में डालकर घुमाया। फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा ने कागज फाड़े, प्रियंका चतुर्वेदी ने सदन में कागज फेंके, सैयद नासिर हुसैन ने संजय राउत को अधिकारियों पर धकेला, रिपुन बोरा ने एलईडी स्क्रीन निकालने की कोशिश की, कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह ने वीडियो बनाया, राजामणि पटेल, अनिल देसाई, विनय विश्वम और इल्मा राम करीम ने टेबल पर रखे पेपर और फाइल छीने। डिसीजन बड़ा है, सोच छोटी है। ये साबित हो गया है सरकार से, जहां पे प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के खिलाफ जो काम हुआ है सस्पेंशन का, वो दिखाता है कि ये वो डरी हुई सरकार है जो जवाबदेही से भागती है। निलंबन पर विपक्ष का रुख कड़ा है, लेकिन सरकार क्या सोचती है, इसकी झलक संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के चिट्ठी से मिल रही है। उन्होंने 12 सांसदों के निलंबन प्रस्ताव के मुद्दे पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को भेजा था। पत्र में कहा गया है कि राज्यसभा का 254वां सत्र वास्तव में हमारे संसदीय इतिहास में सबसे निंदनीय और शर्मनाक सत्र के रूप में गिना जाएगा। जो अपमान हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। निंदा और पश्चाताप से भी उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है जो उन लोगों ने की है। बहरहाल एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ विपक्ष, तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं। दिल्ली से पौलमी साहा, सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस और अन्य विरोधी दल भी गुस्से में हैं। और इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया है। सिर्फ टीएमसी ने वॉकआउट नहीं किया, कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने सरकार पर निशाना भी साधा।
लीडर्स है, सबकी अगुवाई में हम लोग बॉयकॉट भी, वॉकआउट भी किए हैं। आज वॉकआउट इसलिए किया, हम जानते हैं कि ये मसला राज्यसभा की है, लेकिन हम सब चुने हुए नुमाइंदे हैं। राज्यसभा ये लोकसभा, हम नुमाइंदे तो होते हैं, तो कोई नुमाइंदे के ऊपर हमलावर हो सरकार, तो दूसरी सभा में हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। इसीलिए हम ये विरोध करते हुए इन लोगों के साथ जो राज्यसभा में सस्पेंशन हुए हैं, उन लोगों के साथ हम अपना संबंध रखते हुए आज लोकसभा में हम लोग वॉकआउट किए हैं। एक छोटे से ब्रेक ले, यहां रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए 1 और 11। राज्यसभा से वॉकआउट के बाद विपक्ष ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरविंद जी, आप और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। आपके पास वाइड है तो मैं क्या करूँगा, बताओ। वाइड है। 1 और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।